realized that we would have such an esteemed gathering in attendance, and I welcome you all and I thank you all for joining us here today. I'd like to start by reiterating, and I'm sure you'll all join me in condemning the outrageous terrorist attack that we saw in Balochistan over the last couple of days, and saluting the bravery with which our armed forces not only took on the terrorists but freed those in captivity. This was a outrageous and heinous terrorist attack, and as it was ongoing, और ये पता चला कि इतने दूर दराज इलाके में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, तो मुझे तो यही लग रहा था कि this is now going to be a serious operation that will take quite some time to clear and rescue. जिस efficiency के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। और हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो या जो भी रंग और रूप दहशतगर्दी ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके तमाम कारकुन अपनी क़यादत से ये सही किया है कि हम इनसे डट के मुकाबला करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के पूरा मुल्क इस जंग में कामयाब होंगे। इसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी टीम का अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो अब 2-3 दिन पहले आपने अपना 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और आपने जिस तरीके से ख़ुद अपने तमाम मंसूबे के बारे में सिंध के अवाम को ब्रीफ किया, जिस डिटेल के साथ और जिस अंदाज के साथ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारे मीडिया के दोस्त पे यहाँ बैठे हैं, जहाँ भी कमी को गुंजाइश है वो ज़रूर पॉइंट आउट करते रहते हैं, मगर साथ साथ इस चीज़ के को अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे यहाँ एक ऐसे वज़ीर आला है जो इस तरीके से और इस अंदाज से अपना कामयाबियाँ के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में ना सिर्फ ब्रीफ कर सके मगर एक क्लियर विज़न है, एक रास्ता है कि तमाम मसाइल अपनी जगह, हमने सिंध को कहाँ से कहाँ लेकर जाना है और यहाँ के अवाम की खिदमत कैसी करनी है। साथ साथ कल सिंध की ख़ुसूसी सूबाई इजलास हुआ, जहाँ तमाम सियासी जमातों ने, तमाम सियासी पार्लिमान के मेंबरान ने पानी की तकसीम पे और नया कनाल्स पे एक वाज़े मौक़िफ़ लिया, और आपकी जो आवाज़ है इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद में पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। आपने इसमें भी इसलिए किसी वजह से ये जो इशू है बड़ा रिसेंटली कुछ लोगों को एहसास हुआ, और बड़ी अच्छी बात है कि वो इस पे तबसरा भी करना शुरू कर दिया। बट
حقیقت یہ ہے کہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، اور سندھ کا چیف منسٹر، سندھ کا ٹیم ہر لمحہ پہ، ہر مرحلہ پہ آپ کا جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں شکلیں تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہر حکومت نے اس ایشو کو آگے لے کے چلا۔ جب پی ٹی آئی کے دور میں 2 نیا کنالز بنانے کی بات کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جام خان شورو صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھورو صاحب نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور جب وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں کسی بھی فورم پہ، کسی بھی جگہ اس ایشو کو ریز کیا گیا تو وہاں سندھ کا آواز، سندھ کا وزیر اعلیٰ نے آپ کے نمائندگی کرتے ہوئے اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں، اور ہم مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم مثبت سیاست میں یقین رکھتے ہیں۔ ہر مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زرعی شعبہ بھی ترقی کرے، ہمارا بیرانی پسماندہ علاقے بھی ترقی کرے، مگر ساتھ ساتھ پانی کا منصفانہ تقسیم 1991 کی واٹر ایکارڈ کے مطابق ہو، اور انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد بھی ہم آپ کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ آج ہم جس وجہ سے، جس مقصد کے لیے جمع ہوا ہے وہ یہ کہ صوبہ سندھ کے عوام کا مجھ سے جو سب سے بڑا مطالبہ رہا ہے وہ روزگار کا مطالبہ رہا ہے، اور اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے صوبائی سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کردار ادا کرتی آ رہی ہے۔ جو اوبیسلی سندھ کے عوام کا مطالبات ہے، جو ڈیمانڈ ہے، اتنا گنجائش صرف حکومت کے جو ویکنسیز ہے اس میں نہیں ہے، اور ہم سب کا تو شکایت ہی رہتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ ویکنسیز صحیح انداز میں یا جس تیزی کے ساتھ سندھ کے عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ فل نہیں ہوتے۔ دوسری طرف سندھ کی جو ویکنسیز، جو ڈائریکٹ ویکنسیز ہے، جیسے اس کے ساتھ ساتھ جیسے شرجیل صاحب نے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ڈائریکٹ جابز کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ جابز ہیں، جو بھی حکومت کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے ارد گرد اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ 2.1 ملین ہاؤسز بنانے کے منصوبہ بنایا تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ کرنا ہے یا ساتھ ساتھ ہم نے روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنے ہیں یا ہم نے، لیکن اس منصوبہ شروع ہونے کے بعد اس کے اثرات ایسے تھے کہ یہ نہ صرف سیلاب متاثرین کو نئے گھر بنانے، وہ نقصان پورا کرنے کے منصوبہ بنا، مگر اس لیے کہ آپ ان خواتین کو اپنی زندگی میں پہلی بار بینک اکاؤنٹس بنا رہے تھے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ان خاندانوں کو اور جہاں ہو سکے ان گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا شروع ہو گئے۔ کہ یہ نہ صرف پھر گھر بنانے کا منصوبہ رہا، یہ ایک ویمنز اکنامک
एम्पावरमेंट का मंसूबा भी बना। इरादा नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ कि इस मंसूबा की वजह से हमने सिंध भर में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं। अब जहाँ सिंध हुकूमत भी जॉब क्रिएटर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमारा प्राइवेट सेक्टर सिंध का सबसे बड़ा असासा है। पूरे मुल्क की मईशत सिंध का प्राइवेट सेक्टर चलाती है। सबसे रोजगार के मौके सिंध के प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि हम एक पार्टनरशिप क्रिएट करें बिटवीन द वर्कर्स एंड द जॉब क्रिएटर्स। हम इनको फैसिलिटेट करें ताकि चाहे वो हुकूमत के रोजगार के मौके हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के रोजगार के मौके हो। इसलिए हुकूमत का काम है ना सिर्फ रोजगार फराहम करना, ना सिर्फ रोजगार के मौके फराहम करना, मगर साथ साथ वो रोजगार फिर अपना आवाम को दिलवाना। तो एक डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने अब आई वर्क फॉर सिंध की ऐप शुरू किया है, www.iworkforsindh.com। और अब मैं दावत देता हूं इस सूबे में हर रहने वाले को, इस सूबे के बेरोजगार नौजवानों को और साथ साथ इस सूबे के जॉब क्रिएटर्स को कि आए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। जो हुकूमत की वैकेंसीज होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज होंगे, आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए सिंध के अवाम जो मेहनती है, सिंध के अवाम जो तालीम याफ्ता है, सिंध के अवाम जो, मैं अभी ऑक्सफोर्ड से होकर आया हूं, तो ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में तालीम हासिल कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। तो अपना भी सूबा में, अपना सूबा की तरक्की में, अपना मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मगर इसकी कामयाबी तब होगा जब हम सब मिलके इस पे काम करें। तो मैं आपको दावत देता हूं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूथ विंग्स हैं और PSF के नुमाइंदे हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि अब आप अपना कैंपेन चलाएं, आप सिंध के अवाम का रजिस्ट्रेशन iworkforsindh.com पे करवाएं। मैं अपील करता हूं प्राइवेट सेक्टर से कि हम आपके साथ वैसी ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्टनर करना चाहते हैं, बहुत तरीके से आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं, मगर आपको भी दावत देते हैं कि आप भी इस पोर्टल का हिस्सा बने और सिंध का टैलेंट का फ़ायदा उठाएं। मैं समझता हूं कि मिलके हम ना सिर्फ अपना सूबा का मगर अपना मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की कामयाबी हम सब की कामयाबी है। और इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त मईशत के बारे में एक हुकूमत की पॉइंट है कि महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है, महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है, और इसका हम सब वेलकम करते हैं। साथ साथ हम ये जानते हैं कि जहाँ महंगाई में इजाफा तो नहीं हो रहा होगा, वो उसको अवाम तक वो रिलीफ पहुँचाने का जिद्दोजहद में हम इंशाल्लाह हुकूमत के साथ देंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि महंगाई की इजाफा ना होने के साथ साथ कि वो ग्रोथ जनरेशन हो, ताकि हम वो एकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो नौजवान है, उनको हम वो रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत इस जद्दोजहद में अपने किरदार अदा करेगी। हम
ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنا جاب کریٹرز کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنر کر کے حکومت کے جو ویکنسیز ہیں ان سب کو iworkforsindh.com پہ ہم لے کر آئیں گے اور اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے اور ان کے ٹیلنٹس کا ان کا محنت کا ہم سب اپنے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ سب کی بہت بہت شکریہ. اینڈ ونس اگین آئی تھینک ایوری بڈی for joining us here today.